Hello students, welcome to the zoology class, and today we are going to continue from the chapter reproductive health for the topic infertility and indeed the part 2 of the topic infertility. In the previous lecture, I have completed till part 1, in which you have experience about the medical health sector, how it offers the respective uh, assistance to such couples who are deprived of child, their own biological child. Okay, in the first part, I have discussed all the respective aspects in terms of social awareness regarding the treatment of infertility. Yes, but in this part 2, we are actually giving emphasis on those techniques which are presently available in the medical health sector to actually facilitate and accelerate the problem and providing solutions. Yes, to just simply exclude those problems and accelerate the solutions to all those couples who are encountering such situation of infertility and being childless in their marriage life, right? So here we go with the discussion. Assisted reproductive technology, assisted reproductive technology, as ART is being called. Now let us simply start some basic aspects of discussion, right? Before I come to the actual technology and what steps are followed, the question is, presently in medical science, yes, presently in medical science, ART has proven a boon. यस, एक आशीर्वाद की तरह है ये समाज के लिए. मेडिकल साइंस में आज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो डेवलप होकर अवेल है, लोगों को अवेलेबल है, राइट? इट इज प्रूवन. क्या साबित हुआ है? एज बून, आशीर्वाद की तरह, टू द मैरिज लाइफ ऑफ कपल्स. टू होम, किनके लिए वो आशीर्वाद है? समाज के किस उस मैरिजेबल एज ग्रुप के लिए, वो ऐसे कपल्स के लिए जो अपने मैरिज लाइफ में एनकाउंटर कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं किसके साथ? द कंडीशन ऑफ इनफर्टिलिटी. Class, now see, I have first of all taken infertility as a condition, and condition can be good and bad. मैंने इनफर्टिलिटी को डायरेक्टली एक डिजीज या डिसऑर्डर नहीं कहा है. प्लीज माइंड इट. आई हैव सेड इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ कंडीशन कॉल्ड इनफर्टिलिटी व्हिच इज एनकाउंटर्ड बाय द कपल्स. सो द क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट आई एम यूजिंग द साइन ऑफ एनलाइटन बल्ब इज, डू यू नो, जस्ट टू स्ट्राइक योर ब्रेन, आपके दिमाग पे एक बात जो है बताने के लिए, जनरेट करने के लिए, इल्यूमिनेट करने के लिए कि क्या वो इश्यू है जो आपको नहीं पता, या क्या आपको पता है. शायद आपको नहीं पता है, या क्या आपको पता है? डू यू नो व्हाट अबाउट इनफर्टिलिटी? यानी डेफिनेटली इनफर्टिलिटी के बारे में आप डेफिनेशन और सिचुएशन तो समझ चुके हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू ट्रीट इट, how to resolve the problem. Really infertility is a problem or not, first of all? So that's the point of explanation. Yes class, what I am saying, is it really infertility taken as a problem? And if it is taken, then really is it a problem? So that what I am going to first of all clarify. मैं पहले इसी बात को जो है क्लियर करूंगा. Do you know के अंडर एक क्वेश्चन फॉर्मेट में कि infertility is medically a social problem. Yes, point to be noted. Class, please mark my statement what I have explained. इनफर्टिलिटी को पार्ट 1 में जिस तरह से आपको बताया गया, रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी बताए गए, जिसमें दूसरे और बॉडीली प्रॉब्लम्स, फिजियोलॉजिकल लेवल, इम्यूनोलॉजिकल लेवल के वजह से एक कंडीशन क्रिएट होता है कॉल्ड इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो किसी दूसरे लेकुना, मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज का नतीजा है. एक कंडीशन है जो कि मेल या फीमेल बॉडी शो करता है अपनी फर्टाइल फैक्टर को लूज करके. यस क्लास,
अपने फर्टाइल फैक्टर को लूज करके एक बॉडी कंडीशन से गुजरता है, जिसको फिर क्लास देखिए क्लास यस उस कंडीशन को, इनफर्टिलिटी को फिर कैसा लिया जाता है, कैसे उसके बारे में हमारा थिंकिंग प्रोसेस है कि इनफर्टिलिटी इज मेडिकली अ सोशल प्रॉब्लम and not a biological curse. Yes, very correctly said. Infertility is medically a social problem. वो एक सोशल प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी, क्योंकि बॉडी के लिए तो वो एक कंडीशन है जो किसी और कारणों से बॉडी में एक कमी पैदा होता है, एक लेकुना, समथिंग इज मिसिंग which discontinue to exhibit fertile nature, ability to reproduce. फर्टिलिटी को ब्लॉक करना और एग्जिबिट ना करने देने वाला कंडीशन जनरेट किया जाता है शरीर में नेचर के थ्रू। द मदर नेचर, इट्स अ कंडीशन। तो सोशली वो एक मेडिकल प्रॉब्लम लिया जाता है, हालांकि एंड नॉट अ बायोलॉजिकल कर्स, नॉट अ बायोलॉजिकल कर्स। बोला अगर नेचर ने किया है तो क्या हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे भाषा में वो तो कहेंगे कि अगर अभी अभी हमने जिस आशीर्वाद की बात कही तो क्या ये एक कर्स है? इज इट अ कर्स? नो, इवन नॉट। इनफर्टिलिटी इज अ मेडिकल सोशल प्रॉब्लम, ये मैं मानता हूं, लेकिन नॉट अ बायोलॉजिकल कर्स। नेचर ने किसी को ये कर्स नहीं दिया है, वो एक कंडीशन दिया है। बिकॉज व्हाट इज द रीजन? सो सी द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्कशन क्लास, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज इट्स अ वे ऑफ नेचर। नेचर क्या चाहता है? ये तरीका है इनफर्टिलिटी को एग्जिस्ट करके, इस सिचुएशन, इस कंडीशन को एग्जिस्ट करके नेचर चाहता है। क्या चाहता है? बिकॉज इट्स अ वे ऑफ नेचर। ये नेचर का ही एक तरीका है टू कीप अ चेक। नेचर क्या चाहता है? कंट्रोल, एक नजर बनाए रखना चाहता है, विजिलेंस, अपना विजिलेंस बनाए रखना चाहता है, देख रेख, नियंत्रण रखना चाहता है। किस चीज पर? टू कीप अ चेक ऑन आर वैल्यू। Yes, class, I do hope if you have gone through the concepts of ecology, yes, then definitely, yes, class, then definitely you might remember this terminology called R value. Yes, R value. हर स्पीसीज का एक आर वैल्यू होता है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर, मैक्सिमम पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस। लेकिन कोई भी स्पीसीज अपने आर वैल्यू को पूरी तरह एग्जिबिट नहीं कर पाते, अपनी एफिशिएंसी टू गिव बर्थ टू मोर एंड मोर यंग वंस इन देयर लाइफ, इन देयर लाइफ स्पैन। इस एबिलिटी को कहते हैं आर वैल्यू, और हर स्पीसीज की एक आर वैल्यू होती है पूरे लाइफ स्पैन में। लेकिन कोई भी स्पीसीज का हर मेंबर उस आर वैल्यू को एग्जिबिट नहीं कर पाते हैं। उनमें से एक कारण है इनफर्टिलिटी, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन नेचर का दिया हुआ बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बट इज नेवर अ साइन ऑफ लिविंग बीइंग। क्योंकि बहुत से ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो अपने लाइफ में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बट दे स्टिल रिमेन अलाइव। रिप्रोड्यूस ना कर पाना जो है लिविंग या लिविंग स्टेट को जो है डिस्टर्ब नहीं करता है। बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि बिना रिप्रोडक्शन किए भी जिंदा है। दे एग्जिबिट देयर लाइफ, दे कंटिन्यू। Yes, I am talking about sterile individuals. I am talking about sterile individuals. ऐसे भी तो individuals है जिनमें sterility है। And if you remember lecture 1 में मैंने कहा था, yes class, lecture 1 में मैंने कहा था sterility is one of the reason of infertility, but all infertility are not due to sterility.
So once again class, it's a very important point, conceptual point of discussion जो मैंने आपके साथ अभी कवर किया कि जिस इनफर्टिलिटी की मेडिकल प्रॉब्लम की बात हम कर रहे हैं वो एक सोशल इशू है, सामाजिक मुद्दा है। बायोलॉजिकली इनफर्टिलिटी एक कंडीशन है और ना कि वो कर्स है। ऐसा नहीं कि सर ये तो बहुत बुरा है, नेचर ने गलत किया है। नेचर ने गलत किया होता तो मैं ये नहीं लिखता, क्योंकि नेचर ने ही इसको एक रखा है तरीका। इट्स अ कंडीशन, इनफर्टिलिटी केप्ट बाय नेचर टू कीप अ चेक ऑन द आर वैल्यू ऑफ अ स्पीसीज, आर वैल्यू ऑफ अ स्पीसीज पॉपुलेशन ग्रोथ, जिससे कि उस स्पीसीज की पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। क्लास सबको आ रही मेरी बात समझ में? यस, I do hope. So once again, I keep the question in front of you कि do you know कि infertility is a medical social problem? Medically वो एक social problem हो सकता है, हाँ मानते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीसीज का एक मेंबर, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन सोशल लाइफ बिताते हैं, तो सोसाइटी में एक्सपेक्टेशंस होते हैं। समाज अपने कुछ क्या बोलते हैं सोशल रूल से भी चलते हैं, जिसमें मैरिज एक ट्रेडिशन कस्टम प्रोसेस है, और उसके थ्रू जो सोशलाइज्ड फैमिली है वो अपने फैमिली को बढ़ाने का, नए मेंबर्स और ऐड होंगे, इस उम्मीद के साथ मैरिज जैसा सोशल ट्रेडिशनल एक्ट परफॉर्म किया जाता है, इस आशा के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो रिस्पेक्टिव मेल फीमेल दो अलग अलग फैमिली के मिलकर एक नई शुरुआत करके फैमिली को आगे बढ़ाएंगे इन नंबर्स विथ न्यू मेंबर्स, इन नंबर्स विथ न्यू मेंबर्स। लेकिन जब उनका वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू अ कंडीशन कॉल्ड इनफर्टिलिटी, व्हेन दे कम अक्रॉस, मैंने कहा था कि इनफर्टिलिटी एक सामाजिक हिडन क्या बोलते हैं कंडीशन है, लेकिन वो ज्यादा समय तक छुप नहीं पाता है। अ डे कम्स कि लोगों को समझ में आ जाता है कि वो रिस्पेक्टिव कपल कांट प्लान देयर बायोलॉजिकल ओन बायोलॉजिकल इशू बिकॉज देयर इज सम लेकुना, कहीं ना कहीं कमी है, कुछ तो है जो कमी ला रहा है द एबिलिटी टू एग्जिबिट फर्टिलिटी आइदर फ्रॉम मेल साइड और फीमेल साइड और बोथ। तो ये सारी बातें मैंने अपने लेक्चर 1 में आपको समझाया था। हाँ, मेडिकली तो एक सोशल प्रॉब्लम है, लेकिन बायोलॉजिकली इट्स नॉट अ कर्स, क्योंकि इसका होना भी, population of any species must show infertility also। 100 में से 10 मेंबर्स, 20 मेंबर्स इनफर्टाइल भी होंगे, तो उससे वो स्पीसीज और उसका पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बाकी 80 मेंबर्स तो फर्टाइल हैं जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बना के रखेंगे। दैट व्हाट आई मीन टू से, हेंस बायोलॉजिकल कर्स नहीं है। तो फिर इनफर्टिलिटी का सिग्निफिकेंस नेचुरली बस ये है, क्योंकि नेचर ने एक तरीका बना रखा है किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए अंडर नेचुरल कंडीशन। सो क्लास, आई डू होप यू गॉट माय पॉइंट। देन द एक्सप्लेनेशन फर्दर कंटिन्यूज। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात अपनी जगह आती है समझ में कि अभी अभी हमें जिस तरह से आपको बताया, बट नेक्स्ट पॉइंट इज, यस, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट कि डज इनफर्टिलिटी इफ टेकन एज एन इनकॉम्पिटेंस। थोड़ी देर के लिए अब मैं मेडिकल साइंस की बात करूं, क्योंकि नेचुरल और सोशल क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल नेचुरल कंडीशन में इनफर्टिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका होना भी एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जिससे कि किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नेचुरल कंडीशन में कंट्रोल किया जा सके। ओके, ये मेरा कंक्लूजन था। बट कमिंग बैक टू द कंसेप्ट, क्योंकि हमें पढ़ना है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हमें क्या पढ़ना है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी।
तो पॉइंट टू बी नोटेड, देखिए आगे क्या लिखा है, दस इनफर्टिलिटी इफ टेकन एज इनकॉम्पिटेंस, अगर मैं इनफर्टिलिटी को एक तरह का, है ना, कहते हैं ना कि किसी काम को करने लायक ना होना, इफ सम इंडिविजुअल इज इनकॉम्पिटेंट, है ना लायक हो पाना उस काम को और उस एक्टिविटी को एग्जिबिट करने में, यस। तो इफ इनफर्टिलिटी दस टेकन एज इनकॉम्पिटेंस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, डॉक्टरी भाषा में मेडिकल ग्राउंड्स पे अगर मैं इसको एक तरह का शरीर की नाकामयाबी मानूं, किसको, इनफर्टिलिटी को, देन फिर वेयर इज द इशू, फिर क्या मुद्दा है और उसको कैसे डील किया जाए, ठीक है। सो सी क्लास, देन इट इज द हेल्थ सेक्टर, yes class, it is the health sector to assist such couples. I repeat class, thus infertility is taken as incompetence on medical grounds, then it is the health sector to assist such couples, ऐसे कपल्स जो इस इनफर्टिलिटी कंडीशन से गुजर रहे हैं और सोशल, है ना, सोशल लेवल पे उनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, दे हैव टू एनकाउंटर एंड अपीयर विथ मेनी क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, तो उनके लिए फिर क्या है, या फिर ऐसा ना कहे कि किसी ने कुछ कहा चाहे नहीं कहा, आप मान के चलिए वो अपनी लाइफ में खुशियां चाह रहे हैं कि उनके खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, चलिए मैं उस एस्पेक्ट पे बात कर दूं। तो आइदर वे वी कैन से कि इट इज द हेल्थ सेक्टर टू असिस्ट सच कपल्स, ऐसे कपल्स जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं उनको सहयोग देना, उनको असिस्ट करना, टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, राइट। उन कपल्स में उनकी जिंदगी में खुशी लाना कैसे, बाय एस्टेब्लिशिंग देयर पेरेंटहुड, यस क्लास, एस्टेब्लिशिंग देयर पेरेंटहुड, कि वो बायोलॉजिकली जिस बात का उनमें इनकॉम्पिटेंस थी, कमी थी और उनको बच्चा नहीं हो रहा था, दे कांट हैव देयर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड, उस बात से वो वंचित थे, कहते हैं ना, दे आर डिप्राइव ऑफ देयर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड, सो लेट ब्रिंग द हैप्पीनेस, और क्यों ना उनके जीवन में भी, है ना, माता पिता का सुख लाया जाए। तो वो माता पिता का सुख कैसे लाया जाएगा, एस्टैब्लिशिंग देयर पेरेंटहुड विथ फॉलोइंग ART, यस। तरीका क्या है उनके जीवन में, क्या बोलते हैं, माता पिता का जो सुख है, पेरेंटहुड है, उसको एस्टेब्लिश करने में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART का इस्तेमाल किया जाए, एंड दीज आर द मेथोडोलॉजी, दीज आर द रिस्पेक्टिव मेथोडोलॉजी, यस। यहां तक क्लियर है क्लास। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, AI, GIFT and ICSI. Okay, now let me move with the very first methodology, that is test tube baby program. Yes, class, this is the first technique which is called test tube baby program. Fine. And point to be noted, yes class, point to be noted, you can see this is a diagrammatic presentation. Female is being given a hormonal injection for super ovulation to obtain and collect more than one ovum at a time. That is called super ovulation.
हार्मोनल इंजेक्शन इंड्यूस किया जाता है, जिससे ओवुलेशन एक समय में एक से ज्यादा मल्टीपल ओवुलेशंस हो फॉर सुपर ओवुलेशन टू डिराइव मोर ओवम एट अ टाइम, राइट। इसी तरह से जो है स्पर्म एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे? मेल डोनर से स्पर्म एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो रिस्पेक्टिव स्पर्म और ओवम को आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन अ पेट्री डिश जो है फ्यूजन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो ये लेबोरेटरी कंडीशन में सिलेक्टेड ओवम एंड स्पर्म्स को फ्यूज कराना उन्हीं कंडीशंस में जो कि नेचुरली बॉडी में, फीमेल बॉडी में अवेलेबल होता है, बट इट इज नॉट सो इजी. All those conditions are likely to be like a female body, inside a female body, but at the end of the day it is outside. Point to be noted, it is outside the female body in laboratory condition. Hence we called it as IVF, in vitro fertilization. Test tube baby program is also called as in vitro fertilization. टेस्ट ट्यूब बेबी तो उसको एक पॉपुलर नेम दे दिया गया, बट ऐसा कुछ नहीं है कि है ना, इट्स अ मिसनॉर्मर, एक ऐसी गलत धारणा है कि टेस्ट ट्यूब में बेबी बर्थ हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. लेट मी पॉइंट टू बी नोटेड, है ना, दैट इट इज अ मिसनॉर्मर टर्म जस्ट टू मेक द टेक्निक पॉपुलर अमंग द कॉमन पीपल. आम लोगों के बीच इस प्रोग्राम, इस टेक्निक को पॉपुलर बनाने के लिए ऐसा नाम दिया गया, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. तो पॉइंट टू बी नोटेड, सुपर ओवुलेशन करके ओवम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे ही टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन टेक्निक से जो है स्पर्म्स डिराइव करने के बाद फ्रॉम द मेल डोनर एंड फीमेल डोनर, दे आर बीइंग फ्यूज्ड इन लेबोरेटरी कंडीशन टू जनरेट एंड डिराइव फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट. यस, जाइगोट डिराइव करते हैं, और वो जाइगोट को जो है किस तरह से ऑब्टेन किया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. लेकिन फर्दर उस फर्टिलाइजेशन के बाद आप देख सकते हैं एरो को ऊपर की तरफ बनाया है, उसी जाइगोट को फर्दर एम्ब्रियो, प्राइमरी एम्ब्रियो बनने दिया जाता है. जाइगोट को इंड्यूस करके फर्दर प्राइमरी एम्ब्रियो बनाने के लिए कुछ समय और इंक्यूबेट किया जाता है, कंडीशंस दिए जाते हैं, ठीक है. ओके, एम्ब्रियो इज प्रिपेयर्ड. Now, point to be noted. अब उस एम्ब्रियो को, यस क्लास, उस एम्ब्रियो को कैसे और कहां इम्प्लांट करें, वो डिसाइड करने से पहले देखिए क्लास, लेट मी गो थ्रू द पॉइंट्स वंस अगेन, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा. व्हाट इज द करेक्ट स्टेप ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक? यस, दैट्स द क्वेश्चन पैटर्न. जो चीज अभी अभी आपने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से देखा, उसी को ही यहां पर आप कंटेंट वाइज देखिए. स्टेप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक कि ओवा बोल रहा हूं, ओवम नहीं, एक ओवम नहीं निकाला जाता है, मोर देन वन ओवम, इसलिए ओवा फ्रॉम अ वाइफ, यस, फ्रॉम द वाइफ. जो भी रिस्पेक्टिव कपल जो इस टेक्निक को सिलेक्ट करके परस्यू करना चाहेंगे, उनके मेडिकल टेस्ट में यह पाया गया कि स्पर्म ओवम हेल्दी वे में अवेलेबल है, बस उनमें कुछ ना कुछ ट्यूबल फैक्टर है, या कुछ यूट्रस का कुछ प्रॉब्लम था, हार्मोन्स का कोई भी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स था, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन ना होकर इनफर्टिलिटी, है ना, इनफर्टिलिटी सिचुएशन आ रहा था. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लास. तो व्हाट एवर द रीजन, तो जो ओवम डोनर है, ओवा के डोनर है, वो खुद वाइफ हो सकती है, बायोलॉजिकल मदर, जेनेटिक मदर, खुद वाइफ, या फिर ओवम ही. क्यों? क्योंकि एज ज्यादा है. फीमेल डोनर क्यों? यानी कोई अननोन फीमेल डोनर इसलिए होंगे क्योंकि वाइफ में ओवुलेशन ही नहीं हो रहा, फॉलिकल्स है, एज ज्यादा है, ओवरी एट्रोफिड हो गया है, ओवरी में सिस्ट बन गया है, उससे ओवम कलेक्ट करना अब संभव नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द ओवम. क्यों? क्योंकि ओवरी में सिस्ट बन गया है. वो सिस्ट आगे चल के फिब्रॉइड या ट्यूमर भी बन सकता है अगर उसमें ऑपरेशन से किसी तरह का डिस्टर्बेंस किया तो
So there are many reasons to select कि वाइफ को ही डोनर बनाया जाए कि किसी अननोन फीमेल डोनर से. सोर्स इज ओवा. ओवा चाहिए, मोर देन वन ओवम फ्रॉम अ फीमेल बॉडी बाय सुपर ओवुलेशन कलेक्ट किया जाता है. वैसे ही सेमेन फ्रॉम द हस्बैंड, वाइफ है तो वैसे हस्बैंड मेल स्पर्म, मेल गैमेट द स्पर्म्स, और उन स्पर्म्स को या तो हस्बैंड या मेल डोनर से कलेक्टेड बाय yes, the technique is called TESE, TESE, testicular, है ना, extraction of semen, testicular extraction of semen बोलते हैं इसको. तो semen from husband या male donor, unknown male donor collected by the technique called TESE, testicular extraction of semen. नेक्स्ट क्लास फ्यूजन ऑफ द ओवम. जो भी वो ओवा और सेमेन स्पर्म्स सेमेन के अंदर थे उनको अच्छे से जो है मेडिकली ट्रीट करके उनका फ्यूजन कराया जाता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी. यस, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड. फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म or outside the female body. This is the main point to be recognized in laboratory condition to obtain the zygote. और उन zygotes को, है ना, उन zygotes को आगे इंड्यूस करके प्राइमरी एम्ब्रियो बनाने तक जो है रखा जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है. प्राइमरी एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियोज कह सकते हो आप. आई रादर कैन कॉल इट एज अर्ली एम्ब्रियो, राइट. So yes, that is the correct sequence. लेकिन इसके बाद देखिए क्लास, इतना करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज. यस, कि लेप्रोस्कोप मशीन से अब उन एम्ब्रियोज को, ये जो एम्ब्रियो यहां बना, राइट, फ्यूजन हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो बना. अब उस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट फीमेल बॉडी से बाहर जाइगोट को फ्यूजन करके बनाने के बाद एम्ब्रियो अर्ली एम्ब्रियो बनने के बाद लेप्रोस्कोप मशीन से, ठीक है, पुश करके अब उस एम्ब्रियो को कहां इंप्लांट किया जाए. इफ इट इज इम्प्लांटेड इन आइदर ऑफ द ट्यूब, सपोज ओवर हेयर, यस, ये रहा फेलोपियन ट्यूब. क्लास, पॉइंट टू बी नोटेड. उस लेप्रोस्कोप मशीन से उन एम्ब्रियोस को अगर यहां पर जो है इम्प्लांट किया जाए फॉर फर्दर, फिर वो डेवलप होते होते आके यहां पर आगे फर्दर अपना जेस्टेशन पीरियड कंटिन्यू करेगा. देन द टेक्निक इज कॉल्ड, देन सच टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड ZIFT. is called ZIFT. I will define about ZIFT also. ये तो diagrammatically आपको याद कराने के लिए. Then the technique is called ZIFT. And if the respective embryo is being implanted in uterus for further development, then it is called, yes class, in vitro fertilization, IUT. In vitro fertilization, IUT, yes, IVF. इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर. और जिफ्ट का जो फुल फॉर्म है, ये एब्रिविएशन है, जिफ्ट स्टैंड्स फॉर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर. नाउ वेयर द डिफरेंस? बोले सर एम्ब्रियो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना. हाउ टू रिमेंबर? ये तो मैंने डायग्राम से एरिया वाइज बताया आपको. आईयूटी का फुल फॉर्म क्या? इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर ऑफ द एम्ब्रियो जो कि आईवीएफ टेक्निक से बना है. यस, सबको आई बात समझ में? एवरीवन? यस क्लास, लेट्स मूव अहेड. Now
let us see the literature regarding ZIFT and IVF IUT. And what I'm concluding with you is that what I'm concluding with you that कि जो IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जो पूरा टेक्निक है वो खुद दो तरह का होता है. इट इज इटसेल्फ ऑफ रिस्पेक्टिवली टू टाइप्स. Yes, it is respectively itself of two types. What they are? ZIFT and IVF IUT. ZIFT क्या होता है? What is ZIFT? If the embryo up to 8 blastomere stage, if the embryo up to 8 blastomere stage, क्लास ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला. ZIFT, if the embryo up to 8 blastomere stage implanted, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक या उससे भी कम है ना, अप टू बोला है, इज इम्प्लांटेड इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर फर्दर डेवलपमेंट, तब उसको हम कहते हैं ZIFT. यस, आई रिपीट माय स्टेटमेंट. इफ द एम्ब्रियो जो तैयार हुआ था लेबोरेटरी में वो 8 ब्लास्टोमियर के अंदर तक ही है, उससे ऊपर के स्टेज का नहीं है, और उसको फैलोपियन ट्यूब में उस एम्ब्रियो को रखा गया है, इम्प्लांट किया गया फॉर फर्दर डेवलपमेंट, देन वी कॉल्ड, यस, इट्स एज ZIFT type of test tube baby program, zygote intrafallopian transfer. And if the test tube baby program is conducted by what, keeping in mind किस तरीके को, if the embryo is more than 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से ज्यादा सेल्स उसमें मौजूद है एम्ब्रियो में, और उसको यूट्रस में फर्दर डेवलपमेंट के लिए रखा गया है, कहां पर, यूट्रस में, then the condition is called, या the technique is called IVF IUT, in vitro fertilization intrauterine transfer. ओके क्लास, एवरीवन, सबको आया समझ में? आई डू होप यहां तक सब लोग को क्लियर है ये पॉइंट्स. नाउ फर्दर पॉइंट टू बी नोटेड, क्लास ध्यान दीजिएगा. फर्दर पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अभी अभी आपने देखा कि यहां पर डोनर खुद बायोलॉजिकल जेनेटिक मदर फादर खुद भी हो सकते हैं, या फिर आइदर अननोन फीमेल डोनर लिया जा सकता है ओवम के लिए, या अननोन, क्योंकि द प्रॉब्लम लाइज विद द मेल, तो डोनर अननोन मेल डोनर ले जाएंगे. प्रॉब्लम लाइज विद द फीमेल, तो फिर अननोन फीमेल डोनर लिया गया. लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन सम सिचुएशन व्हाट हैपेंस कि प्रॉब्लम फीमेल में ही है, और प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि ज्यादा एज होने के कारण या और दूसरे डिसऑर्डर्स है ना, फीमेल डायबिटिक है, थायराइड की प्रॉब्लम है, 35 प्लस एज है. नाउ आई एम टेकिंग सम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन कि जो IVF क्लिनिक्स होते हैं उसमें डॉक्टर किसी नतीजे पे प्रैक्टिकली कैसे पहुंचते हैं कि किस कपल को कौन सा तरीका परस्यू करने के लिए काउंसल किया जाता है, और डॉक्टर तय करते हैं एक तरह से फाइनली, क्योंकि इट इज देम टू प्रोड्यूस द रिजल्ट, क्योंकि एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल, राइट. तो इन दैट केस जो इस IVF का इस्तेमाल में जो है फिर क्या बात जुड़ जाती है कि कोई कम एज के दूसरे मदर को हायर करना, अ फीमेल बीइंग, है ना, लीगली हायर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द वे एंड मेथोडोलॉजी. इफ एनी अदर फीमेल हु इज you can say adult reproductively healthy, point to be noted, adult reproductively healthy, and going to offer her uterus for the complete development of the embryo, such a female is called surrogate mother, nursing mother, surrogate mother, gestational mother बोलते हैं, and this approach is called surrogacy.
तो सैरोगेट मदर की जरूरत कब लिया जाता है और क्यों लिया जाता है, ये मैं आपको सारे टेक्निक्स के आखिरी में अलग से लिखवा दूंगा, बता दूंगा अच्छे से। ये तो मैंने यहाँ पर आपको बस एंड अप करने के लिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में जो है खुद वही बायोलॉजिकल जेनेटिक मदर ही परस्यू कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं जेस्टेशन को, और नहीं तो कुछ केसेस में बस दे आर ओनली वाइफ एंड हस्बैंड आर ओनली द डोनर ऑफ रिस्पेक्टिव स्पर्म एंड ओवम, rest all the things going to occur outside the body of that female, the would be mother, जिसको हम कहेंगे ना, जो भविष्य में एक बच्चे की मदर कहलाएंगी, कि उनका अपने जीन पूल का बच्चा होगा। बस इस बात की श्योरिटी है। बाकी पूरा प्रेगनेंसी के जो जेस्टेशन पीरियड को भी एक हायर्ड यूट्रस, एक हायर्ड, क्योंकि डेफिनेटली दैट फीमेल विल बी पेड इकोनॉमिकली, एडवांटेज दिया जाएगा। तो इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि डॉक्टर ने ऐसे एक अडल्ट फीमेल, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी फीमेल को चूज करके उनके भी मेडिकल पैरामीटर्स चेक करके सैरोगेसी के लिए चूज करते हैं, वेयर द फीमेल बॉडी इज गोइंग टू एक्ट एज अ नर्सिंग बॉडी फॉर द propagating fetal development. Yes class, I do hope आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको 4 टेक्निक्स में से पहला टेक्निक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यस, और अब लेक्चर 3 पार्ट 3 रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी में नेक्स्ट 3 टेक्निक्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, gamete intrafallopian tube transfer and intracytoplasmic sperm injection, इन तीनों के डिस्कशन के साथ एंड होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द डे।